Yes, good morning children. Yesterday we have started the chapter soil. Soil which is known as the part of our life. Soil which is very important. Why it is known as the part of our life? Because whatever we are living हम जिंदा है only because we eat food. क्योंकि हम खाना खाते हैं and we get energy from the food. For the functioning of our body, for the functioning of our internal organs, we need energy, and that energy comes from food. From where this food comes? This food comes from the crops which the farmers grow in the fields. How the farmer grow in the field? What is necessary for them? So for growing the crops, the soil is very necessary. Means children, if soil is not there, we cannot grow plants. If we cannot grow plants, we will not get food for it. So that is why soil is the part of our life. Now we have studied yesterday the different types of soil, layers of soil, then soil profile, that also we have studied. Different layers of soil, in that we have studied the components of soil, कि soil में क्या क्या होता है. The soil has water, it has air, it has organic matter, it has minerals and biota. In all these components, minerals are more, quantity of mineral is more. Then biota, then organic matter, all these things are present in the soil. Then this soil is the mixture of different types. If you have taken a sample of soil, 1 handful soil if you take in your hand and just see it, just feel that, then some of the particles of the soil are little bigger. You can see them. You can see them, just you can feel their hardness. Some particles are little smaller than that. Some are very fine. So this soil is the mixture of different types of soil. So if you want to know the components of soil, then yesterday I have explained you the activity, that just go to the garden and bring some soil, or you bring some soil from the roadside, dissolve it in water, उसको पानी में घोलो, गार्डन से या रोड साइड से सॉइल लेकर आओ, उसको पानी में घोलो, and just put that solution in the glass, transparent glass, and keep that glass for some time as it is without stirring. You will see the different layers in the soil. When you dissolve the soil in the water, children, you will see the bigger particles of gravel, जो मोटे मोटे मिट्टी में जो मोटे मोटे कण हैं, gravel, it will settle down at the bottom. उस ग्लास में सबसे नीचे ये बड़े बड़े पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे. Then just above it you will see the sand particle, जिसको हम रेत बोलते हैं. After that you will see the clay, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दिखेगा आपको, घुल जाएगी वो जो है मिट्टी उसमें घुल गई, वो वाला टाइप जो है सॉइल का घुल गया है, clay. Then you will see the water, and then upper side you will see the humus. What is this humus? This humus is the black color substance which is formed by the dead and decaying matter in the farm. फार्म में जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं उस जगह पर dead or decaying matter, plants, animal excreta, then plant twigs, dried leaves, all these things get together and they form the humus. And children, this humus is very good for the soil. Just it packs the particle of the soil. ह्यूमस के कारण सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं एंड द सॉइल बिकम्स द गुड फॉर द वाटर रिटेनिंग. Soil has the good water retaining capacity because of the presence of humus in it. This humus is very important. It is useful, important because it increases the fertility of the soil. So just above it you will see the layer of humus. So these are the different components which are seen at different levels, different layers in the soil. Children, after that I have explained you about the soil profile also. Soil profile matlab if you have gone to the construction area where the construction of house or the building is going on, you might have seen नींव बनाने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं. जब इस गड्ढे को खोदा गया तो अब एक साइड से उस अर्थ में जमीन के अंदर की डिफरेंट लेयर्स को आप देखेंगे. There are total 4 layers: A horizon, B horizon, C horizon and R horizon. These 4 different zones, horizons will be seen.
द अपर मोस्ट, द टॉप मोस्ट लेयर इज द टॉप सॉइल। टॉप मोस्ट लेयर जो है जिसको हम ए होराइजन बोलते हैं वो टॉप सॉइल है। मोस्ट ऑफ आवर प्लांट्स वी ग्रो इन द टॉप सॉइल। हम जब भी कोई पेड़ लगाते हैं तो ज़मीन को बहुत ज़्यादा खोदते नहीं जितना घर बनाने के लिए, नींव बनाने के लिए खोदा जाता है, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो है सॉइल की, इट हैज़ द ह्यूमस। सबसे ऊपर की जो लेयर है सॉइल की, टॉप सॉइल, उसमें ह्यूमस होता है एंड इट इज़ वेरी गुड एंड फर्टाइल। दिस सॉइल इज फर्टाइल, वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। So most of the plants children we grow in that topmost layer, that is top layer, top soil, or what we say A horizon. Very few plants are there whose roots go inside the B horizon. बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जिनके रूट नीचे बी होराइजन तक जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स देयर रूट्स दे आर सेटल इन दिस first layer, that is the top soil, which is very good, fertile. It has the minerals, it has everything what is necessary for the healthy growth of the plant. Then children, then comes the B horizon. B horizon, it is the part where minerals are there. When water seeps, when there is a rainfall and soil absorbs the water, water seeps inside, this mineral get dissolved in water. ये mineral जो है पानी में घुल जाते हैं and this water is taken by the root. Mineral dissolve in water and then this water is taken by the root, absorbed by the root, and it is carried to the whole plant. Then comes the C horizon. C horizon, and this C horizon, it is the part where little bigger particles of soil, bigger boulders are there, and whatever rain we have, जितना भी बारिश हुई है, all that water which seeps underground, जो कि सॉइल एब्जॉर्ब करके ज़मीन के अंदर जाता है, ऑल दैट गेट कलेक्टेड इन द सी होराइजन। सी होराइजन में जो है ये सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज द बेडरॉक। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई पानी भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, पानी यहाँ तक नहीं जाता है, सी होराइजन तक ही पानी रहता है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। जब भी हम बोलते हैं ना कि ट्यूबवेल से पानी लेना है ऊपर, डिगिंग करना है, पानी ऊपर लेना है हैंडपम्प से, ट्यूबवेल से, तो जो हम पानी लेते हैं वो सी होराइजन में ही इकट्ठा होता है सारा पानी, एंड दैट इज टेकन आउट, दैट इज ड्रॉन आउट बाय द हेल्प ऑफ द मशीनरीज। Children, this I have explained you yesterday. Then I also have explained you about the types of soil. In that we have studied sand, clay and loam. Sand means the bigger particles in the soil. Soil के अंदर जो बड़े बड़े particles होते हैं उनको बोलते हैं sand, जिसको हम हिंदी में रेत बोलते हैं। ये रेत आपने देखी है। Then clay, the finer particles of the soil. अब sand जो है, sand के particles बड़े होते हैं। बिगर पार्टिकल्स होने के कारण सैंड में एयर स्पेसेस, पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास में नहीं है, इसलिए उसमें एयर स्पेसेस होती है, गैप होती है। और क्ले के पार्टिकल्स दे आर स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज, फाइनर पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर आर वेरी स्मॉल स्पेसेस इन बिटवीन। चिल्ड्रन सी आई विल टेल यू, सपोज इफ दिस इज द सैंड, देन द सैंड पार्टिकल्स आर लिटिल बिगर। If these bigger particles are there, then there are the air spaces in between. ये जो बीच बीच में आपको जगह दिख रही है, these are the air spaces. तो sand के particles में air spaces ज़्यादा होती है। In comparison with this clay, if this is the clay, then clay के particles जो है बहुत पास पास में होते हैं। They are very close to each other, very small air spaces are there. Air spaces जो है बहुत कम होती है। And loam, it is the mixture of sand and clay. So bigger particles in the soil, it is known as sand, finer particles are known as clay, and the mixture of clay and sand, it is the loamy soil, उसको हम बोलते हैं loamy soil. Now percolation rate. Percolation rate means when the water is allowed to pass through the soil. जब हम soil में से पानी को डालते हैं तो how much water is drain out, कितना पानी उसमें से बाहर निकल आया है, कितना पानी उस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। सपोज आपने यदि सॉइल ली है और आपने 500 ml पानी उसमें डाला है, तो 500 ml पानी में से कितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर कितना पानी नीचे सीपेज, मतलब पूरा सोखने के बाद में बाकी जो बचा हुआ पानी नीचे आ जाता है, दैट इज द परकोलेशन ऑफ, तो वो कैसा है। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट मतलब अब यहाँ पर हम ये देखेंगे चिल्ड्रन कि परकोलेशन रेट मीन्स द
amount of water which is added to the soil in milliliter and the time taken. यदि आपने कोई सॉइल का एक समझ लो आपने 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल यू हैव टेकन, जस्ट यू कीप इट इन द स्ट्रेनर, उसको स्ट्रेनर में डालो, छलनी में, नीचे एक जार रख दो. Now you pour 500 milliliter water. You may have the measurement jar which has the measurement, and then according to that just you pour water, 500 ml of water just you pour in the soil. Slowly and slowly you will see that some of the water is absorbed by the soil and most of the water is drained out. Now this depends on the nature of the soil. जैसे मैंने आपको बताया है कि सैंड जो है, सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं. पार्टिकल्स बिगर होने के कारण उनमें बीच में एयर स्पेसेस ज़्यादा है, बिकॉज दे डू नॉट गेट टुगेदर, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज नहीं है, इसलिए उनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस है. एयर स्पेस होने के कारण जैसे ही आप सैंड में पानी डालेंगे तो सैंड विल नॉट एब्जॉर्ब द वाटर मोर, और सारा पानी एयर स्पेसेस में से होते हुए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा. देन इफ यू हैव द क्ले, यदि आप क्ले लेंगे, उस क्ले को स्ट्रेनर में डालते हैं और सेम उतना ही पानी 500 ml वाटर उसमें भी आप पोर करते हैं, तो आप देखेंगे कि फाइनर पार्टिकल्स आर देयर. क्ले हैज फाइन पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज विथ ईच अदर, they sets close with each other, so there are no air spaces. And if there are no air spaces children, then what will happen, water, some of the part of the water will be absorbed by the soil, soil उसको absorb कर लेगी, that is the nature of the soil because it absorbs the water, and then remaining part of the water will drain out in the jar. बचा हुआ पानी सारा कहाँ जाएगा, नीचे बहकर. तो how much water is absorbed by the soil, whether it is a sand, whether it is a clay or loam, जो भी है, सैंडी सॉइल है, लोमी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, कितना पानी आपने, यदि सेम क्वांटिटी ऑफ सॉइल लिया है, आपने एक जार लिया है, एक स्ट्रेनर लिया है, और यदि आपने उसके ऊपर 100 ग्राम्स ऑफ सॉइल उसमें डाली है, 3 जार लिए हैं, 3 स्ट्रेनर रखे हैं, और तीनों स्ट्रेनर में आपने 100 ग्राम सॉइल डाल दी, एक जैसे सॉइल डाल दी है आपने. एक जैसे सॉइल मतलब एक में सैंड है, पूरी सैंड है, एक में पूरा क्ले है, और एक में लोमी सॉइल है. Then you ml same quantity, that is 500 ml of water, 500 ml in one jar, then another jar again 500, and third jar also, and just you see कि how much water is absorbed by the sandy soil and how much is drained out. Then what is about the clay, how much is absorbed, how much is drained out, and what is the time taken. आपने 500 ml पानी यदि डाला है तो amount of water in ml, and then the time taken by the सॉइल, सॉइल को उस 500 ml वाटर में से कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ, नीचे आया पूरा, तो उसने कितना टाइम लिया उतने में. सेम वी कैन जस्ट कैलकुलेट विद द क्ले एंड लोमी सॉइल, एंड वी कैन कम टू नो अबाउट द परकोलेशन रेट इन मिलीलीटर पर मिनट. मिलीलीटर पर मिनट मतलब यदि 100 ml पानी लिया है तो 100 ml पानी को कितने मिनट में सॉइल एब्जॉर्ब करके कितना पानी ड्रेन आउट होता है. या यदि आपने 500 ml लिया है तो 500 मिलीलीटर वाटर को कितना मिनट लगता है उसको पूरा सॉइल को एब्जॉर्ब करके बचा हुआ पानी नीचे तक आने में. तो चिल्ड्रन, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव, दैट परकोलेशन रेट ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन ml and divided by the time taken in minutes. Here we will count the amount of water in milliliter and time we will measure in the minutes. So percolation rate is equal to the amount of water in milliliter and the time taken by the soil in minutes. So children, this is the formula by which we can find out. Percolation rate of water is different in different types of soil. ये मैंने आपको बताया कि परकोलेशन रेट जो है, सैंडी सॉइल यदि है तो परकोलेशन रेट अलग होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आर बिगर, देयर आर एयर स्पेसेस, पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज विथ ईच अदर, intercellular spaces in sandy soil is more, so most of the water will drain out. Clay soil, the particles are final, there are no interparticular space उसमें नहीं है, the particles are close with each other, that is why most of the water will be absorbed by it and the remaining water after its capacity will drain out. And another लोमी अगेन इट इज डिफरेंट. सो वाटर का परकोलेशन रेट जो है इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. इट इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल. सैंडी सॉइल में
जितना आप पानी डाल रहे, सपोज आपने 100 ml डाला है तो 100 ml में से सॉइल जो है कम पानी एब्जॉर्ब करेगी, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है सैंडी सॉइल की, और बाकी अधिकतर पानी मैक्सिमम वाटर विल ड्रेन आउट। तो परकोलेशन रेट जो है सैंडी सॉइल का ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है मतलब आप जितना पानी डालेंगे वो सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा पानी नीचे जार में आ जाएगा। नाउ चिल्ड्रन, जस्ट दिस आई टोल्ड यू परकोलेशन रेट। नाउ जस्ट यू इमेजिन कि फिर हमको यदि प्लांट्स को ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो द प्लांट्स, which type of soil will be good? If suppose we take the sandy soil, will it be good for the plants to grow? Now just now we have studied the percolation rate of sandy soil is more, मतलब ये soil कम पानी absorb करती है, अधिकतर पानी ड्रेन आउट हो जाता है। मतलब आपने यदि पानी दिया है तो सॉइल में पानी, सैंडी सॉइल में यदि आपने प्लांट ग्रो किया है तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तब तक तो पूरा पानी सैंड में से कहाँ चला जाएगा? नीचे। मतलब रूट्स को पानी ही नहीं मिलेगा क्योंकि सैंड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एयर स्पेसेस इतने बड़े बड़े हैं कि पानी पूरा बह जाएगा। सो दैट इज वाई सैंडी सॉइल इज नॉट गुड। नाउ क्लेई सॉइल, द पार्टिकल्स आर फाइन। क्लेई सॉइल विल एब्जॉर्ब द वाटर, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, इट विल रिटेन द वाटर, पानी को अपने इसमें रहने देगी। यदि सॉइल गीली रहेगी तो वो सॉइल का जो गीलापन है, वेटनेस ऑफ द सॉइल जो है, उसके कारण रूट्स जो है उसमें से वो पानी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वाटर इज नेसेसरी एंड दिस वाटर दे विल गेट फ्रॉम द क्ले सॉइल। क्योंकि सैंड में तो कोई पानी बचा ही नहीं है, सारा पानी बह गया नीचे। क्ले में, क्ले ने एब्जॉर्ब कर लिया है, क्ले सॉइल एब्जॉर्ब द वाटर, इट विल रिटेन इट, उसको अपने पास में ही रखेगी, एब्जॉर्ब पानी उसमें बहुत समय तक रहेगा, सॉइल जल्दी से सूखेगी नहीं, और इसलिए प्लांट रूट विल गेट वाटर। एंड लोमी सॉइल, इट इज़ द वेरी बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप्स। लोमी सॉइल जो है इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी और भी अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा देर तक सॉइल गीली रहेगी उतनी वो प्लांट्स के लिए अच्छी रहेगी। और ये आपने देखा भी होगा, रेत जो है, रेत में आप यदि पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी वो सूख भी जाती है क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करती ही नहीं है, रिटेनिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है उसकी, ज़्यादा नहीं है। और उसके कंपैरिजन में क्ले और लोम को देखेंगे तो यदि आपने एक बार क्ले को गीला कर दिया है, लोमी सॉइल को गीला कर दिया है, बहुत देर तक वो गीली रहेगी, और वो जितनी देर तक गीली रहेगी उसके अंदर का पानी रूट्स को मिलता रहेगा। दैट इज़ वाई दिस सॉइल इज़ गुड फॉर द क्रॉप्स। नाउ अगेन क्ले एंड लोमी सॉइल में, yesterday also I explained you the crops what we grow, they need different types of, same type of soil is not needed for all the crops, it is not good also। एक ही प्रकार की सॉइल में आप सारे प्रकार के अनाज को नहीं ग्रो कर सकते हैं। हर अनाज की, हर क्रॉप की अपनी नीड है, टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन, टाइप ऑफ सॉइल, वाटर, एवरीथिंग इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। तो अलग अलग क्रॉप्स को सॉइल भी अलग लगती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सॉइल की अलग अलग होती है, और इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। जिस सॉइल में ज़्यादा पानी रहेगा, ज़्यादा देर तक रहेगा, वो सॉइल जो है चावल के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी लगता है, चावल को मैक्सिमम पानी लगता है। बाकी दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में चावल को बहुत ज़्यादा पानी लगता है, वीट को कम पानी लगता है। मतलब वीट के लिए सॉइल ऐसी चाहिए जिसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो नीड ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट फॉर राइस एंड वीट। Again, type of soil is also different from rice and wheat. So, different types of crops grown in different types of soil, and all that which type of crop will be grown in which type of soil, it all depends on the nature of the soil. Just now I said. So, different types of crops, children, we grow in different. Now, children, here I have drawn the diagram. See, absorption of water by the soil. अभी मैंने आपको बताया था. This is the jar, beaker. This is the funnel. Then we keep the filter paper on the funnel. फिल्टर पेपर इसलिए रखना है क्योंकि फिल्टर पेपर के ऊपर हम रखेंगे सॉइल, तो सॉइल के एकदम फाइनर पार्टिकल्स जो है वो इसमें से नीचे ना आ जाए, इसलिए वी विल कीप द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से फिल्टर होकर पानी नीचे जाएगा, तो सॉइल, फिल्टर पेपर के ऊपर सॉइल रखेंगे। दिस इज अ ड्रॉपर। नाउ सपोज यू हैव टेकन 100 ml ऑफ सॉइल, just you keep the soil on this filter paper. Now drop by drop you add water to the soil. आपने डिसाइड कर लिया कि हमने 100 जो है ग्राम सॉइल ले ली है, अब मैं उसमें 500 ml पानी डालूंगा। देखता हूँ कि 100 ग्राम सॉइल में कितना पानी रिटेन रहता है और कितना ड्रेन आउट हो जाता है।
तो ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर इफ यू ड्रॉप द वाटर ऑन इट, व्हाट विल हैपन व्हेन यू एड द वाटर दिस सॉइल विल गेट वेट, ये सॉइल गीली हो जाएगी। सॉइल गीली होने के बाद में अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड व्हेन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सैचुरेशन, जब इसमें इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो भी है उसके अकॉर्डिंग, यदि सैंड है तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो उस स्पेस में से पानी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्ले में जो है ये स्पेस जो है पार्टिकल्स के इसमें स्पेस बहुत कम है तो पानी रिटेन रहेगा, उसके अंदर रहेगा पानी, सैंड उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसमें रिटेन मतलब अपने पास में रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा ड्रेन होकर। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज सपोज यू हैव टेकन 500 ml एंड द टाइम, ये 500 ml आपने पानी पूरा इसमें डाल दिया है, उसके बाद में कितना मिनट में पानी नीचे आया है और फिर कितना पानी आया है। जरूरी नहीं है कि पूरा 500 ml पानी नीचे आ जाए। सैंड होगा तो कुछ वाटर सैंड थोड़ा सा पानी उसको लगेगा गीला होने के लिए, वो गीली हो जाएगी सैंड और बाकी पानी नीचे आ जाएगा। पर क्ले के केस में क्या होगा, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, इट विल रिटेन द वाटर एंड देन द water will run out, so it will take time will be different. Then again with the loamy soil also it will be different. So this is the instrument which we use to find out the percolation rate. One beaker is there, on that beaker just we keep the funnel has the filter paper and on the filter paper we keep the soil, and then drop by drop water is added to the soil, and then in a given course of time just we find out the amount of water added to the soil and the time taken by the soil to drain it out. So this rate, this percolation rate children is different for the different types of soils are used to cultivate different types of crops. Clay and loam are suitable for growing wheat, gram and paddy. Cotton is grown in sandy and loam soil. Loam is the mixture of sand and clay. लोमी सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स, लोमी सॉइल बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए, क्ले भी अच्छी होती है, पर लोमी मतलब जो कि मिक्सचर है सैंड और क्ले का, दिस इज़ गुड फॉर द कॉटन। हमारे यहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता है तो ये कॉटन जो है ये लोमी सॉइल में सबसे अच्छा ग्रो होता है। और लोमी सॉइल मतलब विच टाइप ऑफ सॉइल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। Then clay soil, the clay soil, particles of the clay soil is very fine. Just now I explained you different types of crops are grown in different types of soil. So children, clay and loam, wheat and gram is grown in clay and loam. Clay and loam, sand और clay के इसमें क्या grow करते हैं, cotton, और wheat, gram, it is grown in the clay and loam, मतलब mixture of clay and loam. Loam is the already mixture of sand and clay. Then paddy, it is grown in क्ले रिच इन मिनरल्स, मतलब क्लेई सॉइल लेते हैं उसके लिए जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, और ये मिनरल ज़्यादा होते हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और चावल के लिए पानी ज़्यादा लगता है, सो दैट इज ग्रोन इन द क्लेई सॉइल. सो चिल्ड्रन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन different types of soil. Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. Then it has a good water retaining capacity. For paddy, soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water is ideal. Then for lentils मतलब मसूर and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. For cotton, sandy and loam is good, which drain water easily. So in that way children, different types of crops are grown. Now soil holds water in it, which is called soil moisture. The capacity of a soil to hold water is important for the various crops. अभी मैंने बताया कि soil जितना पानी absorb करके रखेगी, जितनी मिट्टी गीली रहेगी उतनी प्लांट्स के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जितनी गीली है उसमें पानी उतना ज़्यादा है और वही पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं. Whatever water is absorbed by the soil, तो वो सॉइल में पानी जितनी देर तक रहेगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. If the soil has very good water retaining capacity, मतलब कि it can hold water for the longer time, and if it can hold water for the longer time means it can provide water to the roots for the longer time. So that soil will be good for the crops. So this is different for the different types of soil.
देन चिल्ड्रन क्लेई सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टेचूज। अब सिर्फ सॉइल का यूज हम जो है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए नहीं करते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमको खेती ही करना है तो ही सॉइल की ज़रूरत है, इसके अलावा भी सॉइल से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। पॉटरी वाला जो इंडस्ट्री है, पॉटरी वाला उद्योग पूरा उसके कारण चलता है स्टूडेंट्स। जितने अलग अलग प्रकार के प्लांट पॉट्स आपको दिखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ क्ले से बनती हैं, ये आपने देखा है ना। अलग अलग हमारे यहाँ पे जब रिलीजियस फंक्शंस होते हैं तो हमारे घर में हम अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ लाते हैं, वो सारी मिट्टी से ही बनी हुई होती है। तो ये कई सारी प्रकार का जो चल रहा है, उद्योग चल रहा है, ये इसमें भी सॉइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ही नहीं, तो अलग अलग प्रकार के पॉट्स, डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स बनाने में, टॉयज बनाने में, कई सारी चीज़ें बनाने में सॉइल का यूज होता है। So this soil is used for the different purposes at different places for the making of different things. अलग अलग डिज़ाइन की मूर्तियाँ बनाना है, अलग अलग डिज़ाइन के पॉट्स बनाना है, फिर टॉयज बनाना है, इनमें सब में भी क्ले का यूज़ होता है, सॉइल का यूज़ होता है। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सॉइल. I have explained all these things. I hope you may have heard it carefully. Today what I have explained you about the different particles of the soil. According to their size, the names are different. Bigger particles in the soil are sand soil. Then finer particles, clay soil, mixture of sand and clay, it is loamy. Then one more, yesterday also I explained you silt. Silt means it is the soil which is brought by the current of water on the banks of the river and sea. समुद्र और नदी के किनारे के ऊपर पानी के बहाव के साथ में जो सॉइल आती है, दैट इज द सिल्ट. देन दिस सॉइल इज अफेक्टेड बाय रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट. दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल. देन चिल्ड्रन, percolation rate. Percolation rate, how much water is drained out from the soil, and the water retaining capacity of the soil. This percolation rate and water retaining capacity of the soil is different for the different soil. सैंड का परकोलेशन रेट अलग होगा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अलग होगी, क्ले का अलग है और लोमी सॉइल का अलग है. सो टू फाइंड आउट द परकोलेशन रेट वी हैव द फॉर्मूला अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय इट टू परकोलेट इन मिनट्स. This is the formula. Then this is the instrument, children. We can do the activity. We can find out how much time is needed for the particular milliliter of water to drain out, to percolate by a particular type of soil. Then different types of soil are used for growing different types of crops. They are good for the crops. Clay and loam soil is good for the wheat and gram. Paddy, clay rich in mineral. Clay जिसमें मिनरल ज़्यादा होते हैं वो सॉइल पेडी के लिए अच्छी होती है, और कॉटन के लिए लोमी और सैंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंड सॉइल इज गुड फॉर द कॉटन. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. प्लीज be perfect in drawing the diagrams and understand the main points, and whatever matter it is given the chapter what I have explained you, please listen to it carefully and try to understand it carefully.